welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is Section 125 of the Indian Contract Act 1872, which deals with the concept of indemnity. Guys, I've told you beforehand that we'll be covering Section 124 and 125 of the Indian Contract Act under the head of Contract of Indemnity. अब Contract of Indemnity क्या होता है? What is the meaning of contract of indemnity with diagrammatic illustration and all the essential elements along with scope of contract of indemnity. I've already explained it under section 124 of the Indian Contract Act. Guys, if you have not watched it or else if you do not know the meaning of contract of indemnity in detail, please go and watch that video before you watch this video, because you must know the meaning of indemnity in greater detail before you watch section 125. So after this, indemnity, I'll be, starting with the concept of guarantee, the contract of guarantee. So section 124 and 125 are the only two sections of the Indian Contract Act which deals with the concept of indemnity. Guys, before we move on, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with section 125. Guys, 125 section को begin करने से पहले I'll be discussing an important illustration with you. उससे आपको ये section पूरा easily समझ आएगा. Section 125 basically क्या बोलता है? It talks about the rights of indemnity holder when sued. एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, and I know जिन्होंने 124 section की वीडियो देखी है मेरी, they might be very well aware of it कि what is the meaning of indemnifier and indemnity holder. Indemnifier or indemnifier, then indemnified or indemnity holder are the parties to a contract of indemnity. मैंने आपको previous video में समझाया. तो जो indemnifier होता है, for example the insurance company, वो हमेशा promiser होगा, और जो indemnity holder होता है और else indemnified होता है, उस इंसान को हम बोलते हैं promisee. तो section 125 बोलता है कि what are the rights? It basically talks about rights of indemnity holder or else indemnified, यानी कि in whose protection indemnity has been granted, यानी कि indemnity holder और promisee when sued. For example, एक इंसान indemnity holder को sue करता है, उस इंसान का खर्चा होगा to defend his case, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि उसके क्या क्या rights हैं. It means what can he recover from indemnifier basically. क्योंकि इंडेमनीफायर प्रॉमिसर होता है. इंडेमनीफायर आपसे प्रॉमिस करता है कि आपके नुकसान की भरपाई मैं करूंगा. इट मींस इंडेमनीफायर जो होता है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी, वो प्रॉमिस करते हैं टू सेव यू अगेंस्ट लॉस. वो आपको किसी भी लॉस से नहीं, दे प्रोटेक्ट यू, दे प्रॉमिस टू सेव यू अगेंस्ट लॉस. और कौन सा लॉस? सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग वो लॉस which is a result of either a conduct of some promiser himself or some other third person. It means मैंने आपको स्कोप ऑलरेडी कवर करवा दिया. सेक्शन 24 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे. सो गाइज, यहाँ पे हम एक इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको इसकी हेडिंग भी समझ आएगी और इसका कंटेंट भी समझ आएगा. फॉर एग्जाम्पल गाइज, देयर इज अ पर्सन ए हु इज द ऑनर ऑफ अ बाइसिकल. इसने क्या किया? बी को अपना साइकिल दे दिया, बाइसिकल ऑन हायर. बेसिकली बी हायर्ड A's bicycle from A being the owner of that bicycle. B ने A से प्रॉमिस किया कि I'll be indemnifying you, आपके नुकसान की भरपाई मैं करूंगा अगर ड्यू टू माई नेग्लिजेंस और इन इवेंट ऑफ एनी लॉस, किसी भी इंसान को लॉस होता है. इट मीन्स I'll be indemnifying you. जब A ने B को साइकिल दिया और एल्स जब B ने A का साइकिल हायर किया, एक हायर परचेज अग्रीमेंट करी और B ने A को कहा कि I'll definitely be indemnifying you in the event of loss. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, it was entered into between A and B. और इस कंडीशन पे A ने B को अपना साइकिल दे दिया, बाइसिकल दे दिया. Now guys, what happened is कि ड्यू टू B's own negligence or due to rash driving, what happened is कि there was some third person C who got injured. C को इंजरी होती है due to B's negligence. अब C क्या करेगा? He will definitely be suing the original owner. जो ऑनर होता है उसी को वो sue करेगा. अब C ने क्या किया? A को sue किया. He filed a lawsuit against A for claiming all the damages and compensation, यानी कि जो C को इंजरी हुई उसके लिए. Now guys, what happened is कई बार क्या होता है, कोर्ट डिसाइड करता है कि आपको डैमेजेस देने हैं. डैमेजेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सेक्शन 73, 74, 75 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अंडर जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो गाइस, अब फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि सी को लॉस हुआ, सी को अब कॉम्पेंसेशन दिलाएगा कोर्ट. फॉर एग्जांपल ए को कहा गया कि आपको 1000 रुपीज कॉम्पेंसेशन देनी है टू सी फॉर एनी लॉस दैट दिस पर्सन हैज सस्टेन्ड. अब ए कहेगा कि मैं तो ऑनर ही नहीं हूँ, आई एम दी ऑनर, बट बी इज समबडी जिसने क्या किया है,
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंटर किया है। अब क्या होगा गाइज, अब यहाँ पे आप देखो ए को 1000 रुपीज देने पड़े एज डैमेजेस, 1000 रुपीज ए के लग गए फॉर डिफेंडिंग हिज लॉ सूट। अब देखो अगर सी ए को स्यू करेगा यानी कि बोथ दीज पार्टीज विल मीट एट द कोर्ट ऑफ लॉ, तो अगर सी अपने साथ कोई काउंसिल लेके आएगा तो ए विल ऑलवेज डेफिनेटली हायर सम काउंसिल फॉर हिम ऑल्सो। ए भी अपने केस को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, ए कोशिश करेगा कि मुझे कम से कम डैमेजेस देने पड़े, और उस चीज़ के लिए ए को किसी लीगल काउंसिल की जरूरत पड़ेगी। अब ए ने यानी कि सी हैज ब्रॉट अ लॉ सूट अगेंस्ट ए एंड ए इन ऑर्डर टू डिफेंड हिज केस, उसको भी अपने केस को डिफेंड करना है तो उसने एक लॉयर को हायर किया। अब यहाँ पे आप देखो कि वैसे कोर्ट ने डिसाइड किया कि ए ने सी को 1000 रुपीज एज डैमेजेस देने हैं फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर एनी लॉस दैट सी हैज सस्टेन्ड। 1000 रुपीज ए के वैसे लग गए फॉर डिफेंडिंग हिज कॉस्ट्स, का मतलब है फॉर डिफेंडिंग हिज लॉ सूट, अपने केस को बचाने के लिए ए के 1000 रुपीज वैसे लग गए। अब यहाँ पे डिसाइड हुआ कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लो, दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। वैसे तो ए ने फॉर एग्जांपल कोर्ट ने डिसाइड किया कि जो डैमेजेस हैं वो ए को 2000 रुपीज देने हैं, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि आप 1500 रुपीज दे दो। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 सिचुएशंस हो सकती हैं गाइज। यहाँ पे ए बीइंग द ऑनर एक बार के लिए तो डेफिनेटली जो इंसान इंजर होता है वो ऑनर को ही स्यू करता है, हमेशा जो ऑनरशिप जिसके पास होती है दैट पर्सन इज स्यूड नॉट समबडी एल्स, क्योंकि किसी को नहीं पता कि यहाँ पे एक हायर परचेज अग्रीमेंट हुई थी। तो यहाँ पे एक बार के लिए दिस इंजर्ड पर्सन विल डेफिनेटली स्यू दिस पर्सन ए हु हैपन्स टू बी द ऑनर ऑफ दिस बाइसिकल। अब ए को क्या हुआ, 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, उसको डैमेजेस भी देने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज उसको डैमेजेस देने पड़े। डैमेजेस का मतलब होता है एनी कॉम्पेंसेशन विच इज टू बी गिवन टू दिस पर्सन, कोर्ट दिलाता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस को समझने के बाद डैमेजेस कोर्ट दिलाता है। फॉर एग्जाम्पल सी ने ए के खिलाफ केस फाइल किया, नाउ सी विल क्लेम 1000 रुपीज और ए को 1000 रुपीज भी देने पड़ सकते हैं। या और अपने केस को डिफेंड करने के लिए, सिंस अगर सी ऐसे ही मान जाता, एक सेटलमेंट हो जाती तो ठीक है, बट सिंस दिस पर्सन हैज गॉन टू द कोर्ट ऑफ लॉ तो ए भी अपने केस को डिफेंड करेगा, डिफेंड करने के लिए उसके 1000 रुपीज और लग गए। या फिर एक और सिचुएशन हो सकती है जहां पे कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज मतलब कि हमने आपको 2000 रुपीज देने थे लेकिन हम 1500 में खत्म करते हैं। अब 1500 इट मीन्स यहाँ पे ए का जो भी खर्चा हुआ, चाहे वो डैमेजेस थे बाय वे ऑफ डैमेजेस, चाहे वो बाय वे ऑफ कॉस्ट्स और बाय वे ऑफ कॉम्प्रोमाइज, जितना भी ए का खर्चा होगा दिस पर्सन इज एंटाइटल्ड लॉफुली टू क्लेम दिस अमाउंट फ्रॉम बी। तो सेक्शन 125 इतना ही बोलता है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट सेक्शन 125 की ये है कि देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, इट मीन्स गाइज आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पता होना चाहिए सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग किसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, if terms and conditions of contract of indemnity apply, either express or implied contract of indemnity, जैसा मर्जी। अगर 2 लोगों के बीच में contract of indemnity है तो जो इंसान promiser है, फॉर एग्जाम्पल बी इन दिस केस indemnifier है, वो इंसान indemnity holder को डेफिनेटली क्या करेगा, अपने जो डैमेजेस हैं इस इंसान का खर्चा हुआ उसको दिलाएगा। ये सेक्शन 125 बोलता है। क्या बोलते हैं देखो, राइट्स, व्हाट आर द राइट्स? राइट्स क्या है? राइट्स यही है, टू क्लेम डैमेजेस, टू क्लेम डैमेजेस, टू क्लेम कॉम्पेंसेशन, टू क्लेम ऑल द कॉस्ट्स व्हिच दिस पर्सन माइट हैव सस्टेन्ड और टू क्लेम इवन द कॉम्प्रोमाइज अमाउंट ऑल्सो। आई होप आपको समझ आ चुका है, ओवरव्यू मिल चुका है। So rights of indemnity holder यानी कि A in this case promisee, what are the rights of this person A when sued by some other person? अगर C ने इस इंसान को promisee को sue किया तो इस इंसान के क्या rights हैं कि he can recover so and so amount of money from the promiser। कौन सी अमाउंट ऑफ मनी? डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज अमाउंट क्लेम कर सकते हो, कॉस्ट क्लेम कर सकते हो जो आपकी हुई। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो हम रीड करते हैं कि what are the rights of indemnity holder when sued। सबसे पहले he can recover from the promiser। गाइस आपको promiser promisee पता होना चाहिए contract of indemnity में कौन होता है। तो he can recover, it means A can recover in this illustration from B who happens to be promiser or indemnifier the following costs। कौन कौन सी अमाउंट को वो कवर कर सकता है? सबसे पहले all the damages, जितना भी डैमेजेस ए को हुआ। डैमेजेस मतलब क्या है? डैमेजेस का मतलब नथिंग इट इज बट कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन क्लेम जितनी भी सी करेगा या कोर्ट की तरफ से जितनी भी सी को कॉम्पेंसेशन मिलेगी, ए का तो खर्चा हुआ पर बी ने कहा था ए को कि आपके नुकसान की भरपाई मैं करूंगा अगर मेरे कारण किसी को इंजरी हुई। तो उस प्रॉमिस को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को इंटैक्ट रखते हुए सेक्शन 125 अप्लाई होगा और इन दिस केस इन दिस इलस्ट्रेशन ए विल डेफिनेटली क्लेम
फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 रुपीज फ्रॉम बी, ऑल द डैमेजेस वो क्लेम करेगा विच दिस पर्सन वॉज कंपेल्ड टू पे टू दिस पर्सन. Being the owner, he was compelled to make this payment or this compensation to this person. But then this person can claim it from the promisor in under a contract of indemnity. Contract of indemnity होना जरूरी है, नुकसान की भरपाई करूंगा ये कहना या एक implied contract होना जरूरी है. Secondly, all the costs also, जितना इसका खर्चा हुआ, for example 1000 rupees in defending his own case in the court of law, तो यहाँ पे भी A जो है वो C से A C को पे करेगा एंड देन A B से क्लेम कर सकता है. बट गाइज प्रोवाइडेड इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑल द सम्स, जितना भी आपका सम, फॉर एग्जाम्पल 1500 रुपीज, ऑल द सम्स पेड अंडर द टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज. टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज क्या था कि 2000 रुपीज के बदले हम आपको 1500 देंगे और हम कॉम्प्रोमाइज में सेटलमेंट कर लेते हैं. तो यहाँ पे ये 1500 रुपीज भी जो ए की पॉकेट से गया वो उसको बी से वो क्लेम कर सकता है, लॉफुली एंटाइटल्ड टू क्लेम इट अंडर सेक्शन 125 प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी शुड बी देयर. इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है बस. बट गाइज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि ये सारी जो आप डैमेजेस या कॉस्ट्स या सम्स को क्लेम करने की कोशिश करते हो उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर मस्ट बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124. अब अगर 124 के अकॉर्डिंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है तो वहां पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पे यू मस्ट हैव एक्टेड प्रूडेंटली. प्रूडेंटली आपको एक्ट करना है. प्रूडेंटली मतलब यू मस्ट हैव एक्टेड एज इफ देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. अगर आपको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है और मुझे ही पे करना है और मुझे कहीं से कॉम्पेंसेशन मिलेगी नहीं, यानी कि अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ना होता तो ए को सारी अमाउंट सी को पे करनी थी जो भी वैलिड थी. क्या ए आगे बी से क्लेम कर सकता था? नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 देयर वाज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वैलिड होगा तभी आप ये क्लेम कर सकते हो. सेक्शन 125 तभी एप्लीकेबल होगा अगर सेक्शन 124 एप्लीकेबल है. अब यहाँ पे यू मस्ट हैव एक्टेड प्रूडेंटली एंड सेकेंडली यू मस्ट नॉट एक्ट इन कॉन्ट्रवेंशन टू द ऑर्डर्स ऑफ द प्रोमिसर. अब आपको मैं इस पॉइंट को क्लियर करती हूँ गाइज. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए सोचता है कि मुझे तो बी से ही पैसा लेना है, मैं क्या करता हूँ डैमेजेस जितने ज़्यादा होंगे मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मेरा खुद का कोई नुकसान नहीं है. 1000 के बजाय 2000 भी हो सकता है. अब फॉर एग्जाम्पल उसको 500 में एक लॉयर मिलता है बट वो क्या करता है 1500 या 2000 में उसकी सर्विसेज को अवेल करता है. इट मीन्स गाइज आप यहाँ पे ये देखो कि ए क्या सोचता है कि कौन सा मेरा कोई लॉस होगा. अगर ए की ये मेंटालिटी हो जाए, यानी कि यहाँ पे प्रोमिसी की ये मेंटालिटी हो जाए इंडेमनिटी होल्डर की कि मुझे तो इंडेमनिटी लेनी है, मेरे नुकसान की भरपाई तो ये वाला इंसान करेगा, इंडेमनिफायर करेगा, प्रोमिसर करेगा, तो जितना खर्चा होता है होने दो. इट मीन्स कि आप यहाँ पे 500, अगर आपको 500 में कोई लॉयर की सर्विसेज अवेल होती हैं उसको छोड़ के आप 1500 पे जाते हो, 2000 पे जाते हो. इट मीन्स गाइज इन दिस केस यू आर नॉट एट ऑल एक्टिंग प्रूडेंटली. या फिर कॉम्प्रोमाइज 1500 पे होने को तैयार है बट आप 1800 पे कर रहे हो. इट मीन्स इन अ वे और द अदर दिस पर्सन इज नॉट एक्टिंग प्रूडेंटली. यू आर नॉट एक्टिंग प्रूडेंटली मतलब इंटेंशनल एक्ट कर रहे हो. आपके माइंड में आप एट द बैक ऑफ योर माइंड देयर इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन. यू आर नॉट एक्टिंग प्रूडेंटली, यानी कि आपके माइंड में ये है कि मुझे तो नुकसान की भरपाई हो जाएगी, जितना नुकसान होता है होने दो. इट मीन्स इन केसेस में आपको फिर इंडेमनिटी नहीं मिलेगी या आपको कम मिलेगी. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट हैव एक्टेड प्रूडेंटली. आपको ये सोचना है कि हैड दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नॉट बीन देयर, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता फिर भी तो मेरा ही खर्चा था, तो उस टाइम पे आप जिस तरीके से एक्ट करोगे आपको उसी तरीके से एक्ट करना है इवन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. डजंट मैटर आपको कोई आपके नुकसान की भरपाई करेगा या नहीं करेगा, यू मस्ट एक्ट प्रूडेंटली. आपको ऑर्डिनरी सिटीजन के जैसे अगर आप अपने सिचुएशन में क्या करते, हैड दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नॉट बीन देयर, आपको उस तरीके से एक्ट करना है. मोरओवर यू शुड एक्ट विद इन योर अथॉरिटी. इट मीन्स जिस चीज की अथॉरिटी आपको दी है प्रोमिसर ने, उसी अथॉरिटी के विद इन आप काम करोगे. इफ यू आर एक्टिंग इन कॉन्ट्रावेंशन टू द ऑर्डर्स गिवन बाय द प्रोमिसर, तो फिर वहां पे प्रोमिसर की लायबिलिटी नहीं बनेगी. उस चीज की लायबिलिटी प्रोमिसर आपको नहीं देगा. जिस चीज के लिए प्रोमिसर ने आपको मना किया है वो चीज आप नहीं करोगे. आई होप यू आर गेटिंग इट गाइज कि यू मस्ट हैव एक्टेड प्रूडेंटली. आपको ऑर्डिनरी सिटीजन के जैसे काम करना है एंड यू मस्ट एक्ट विद इन सम अथॉरिटी. और वो अथॉरिटी क्या है? विच इज गिवन, विच इज एम्पावर्ड टू यू बाय दिस पर्सन प्रोमिसर. अगर आप इसके अथॉरिटी के बाहर काम करोगे, जिस चीज की अथॉरिटी इसने नहीं दी आपको, और यू आर एक्टिंग, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि यू आर एक्टिंग इन कॉन्ट्रावेंशन टू द ऑर्डर्स गिवन बाय दिस पर्सन, तो वहां पे दिस पर्सन विल नॉट बी हेल्ड लायबल टू मेक यू कॉम्पेंसेशन फॉर दोज पर्पसेज ऑल्सो. राइट, उस अथॉरिटी के लिए जो आपने आउट ऑफ हिज रीच करी उसके लिए ये इंसान आपको कॉम्पेंसेशन फिर नहीं देगा. आई होप गाइस आपको सेक्शन 125 क्लियर हो चुका है.
बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। सेक्शन 125 ओनली टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर के कुछ राइट्स होते हैं, बट एट द सेम टाइम सेक्शन 125 में उसकी कुछ लाइबिलिटीज भी बता रखी हैं, और यही है कि ही मस्ट एक्ट प्रूडेंटली। उसके राइट्स के साथ साथ बहुत ब्यूटीफुली उसकी लाइबिलिटीज को भी बीच में ही बता दिया कि आपका डेफिनेटली राइट है कि यू कैन रिकवर सो एंड सो अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द प्रोमिसर सिंस ही हैज प्रोमिस्ड यू दिस अमाउंट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इस इंसान ने आपसे प्रॉमिस किया है और अब ये मुकर नहीं सकता। ही इज entitled to make compensation to you, or you are entitled to claim or to recover this amount of indemnity from the other person, which is promisor or indemnifier, provided you must also act within some liabilities। आपकी भी कुछ restrictions हैं, आपको ordinary prudent man के जैसे ही behave करना है, unnecessarily excessive आपको behave नहीं करना है, which is highly disproportionate। moreover आपको उसकी authority के, उसकी powers के within ही act करना है, you cannot contravene his orders। आई होप गाइज आपको पॉइंट समझ आ चुका है, सेक्शन 125 क्लियर हो चुका है ना गाइज। अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 124 एंड 125 हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है, अब हम डिस्कस करेंगे, विच इज कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर। सेक्शन 124 एंड 125 हैव बीन क्लियर्ड, ये दोनों हो चुके हैं, बट इसी सेक्शन और इन दोनों सेक्शंस के रिलेटेड और एल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज। वो पॉइंट ये रहता है कि कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर। अब आप देखो यहाँ पे इसी इलस्ट्रेशन को हम उठाते हैं, इस इलस्ट्रेशन में अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम जब इस इंसान की लाइबिलिटी कमेंस होती है। हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अगर है, इफ इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124, तो क्या होगा कि जैसे ही इस इंसान का नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई इसको करनी है। नुकसान होना जरूरी है, नुकसान होगा तो फिर ये इस इंसान की लाइबिलिटी अराइज होती है टू कॉम्पेंसेट दिस पर्सन और टू इंडेमनिफाई दिस पर्सन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बट गाइस पॉइंट कई बार ये अराइज होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को सुनो। कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर, इट मीन्स कि व्हेन दिस पर्सन, व्हेन इज द एग्जैक्ट टाइम when this person indemnifier becomes liable to pay or to make indemnity to this person, or in other words हम ये भी कह सकते हैं कि what is that time when this person indemnity holder becomes entitles to receive or to recover indemnity from him। आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो। कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी का अगर क्वेश्चन है कि इस इंसान की लाइबिलिटी कब अराइज होती है, तो उसका बेसिक पॉइंट ये है, हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं, कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी का ये मतलब है कि ऐसा क्या वो टाइम है जब इस इंसान की लाइबिलिटी कमेंस होती है, और इन अदर वर्ड्स ऐसा क्या वो टाइम है जिस टाइम के बाद ये इंसान लॉफुली एंटाइटल्ड हो जाता है टू क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम दिस पर्सन। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, क्वेश्चन को मोल्ड किया है, बात एक ही है। क्वेश्चन सिर्फ यही है कि व्हाट इज द टाइम व्हेन दिस पर्सन बिकम्स लायबल टू मेक इंडेमनिटी टू दिस पर्सन, or in other words when is this person lawfully entitled to recover compensation or indemnity from this person indemnifier as promised। अब क्वेश्चन आपको समझ आया गाइस। अब इस क्वेश्चन के दो अपोजिंग व्यूज हैं। हमारे इंडियन जुडिशरी में दो अपोजिंग व्यूज आते हैं इस क्वेश्चन को लेके। बहुत सारे जुडिशरी में जजेस ये बोलते हैं कि जो इंडेमनिफायर है, जो प्रोमिसर है, उस इंसान ने इंडेमनिटी देनी है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है कि आपके नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। अब वो इंसान, कुछ लोग तो कहते हैं कि जब एक्चुअल में इस इंसान को सफ़र हुआ, लॉस सफ़र हुआ। अब आप समझने की कोशिश करो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो व्यू ये आता है कि जब इस इंसान को, यानी कि ए, आई विल बी यूजिंग दिस वर्ड ए, जब इंसान को जब ए को एक्चुअल में लॉस सस्टेन हुआ, उसके बाद ये जो पर्सन है ए, ही विल बिकम एंटाइटल्ड टू रिकवर कॉम्पेंसेशन फ्रॉम दिस पर्सन बी। और दूसरा व्यू ये बोलता है कि इस इंसान की जो लाइबिलिटी है, अगर वो आपको फॉर श्योर हो गया, 100% सर्टन हो चुका है कि इस इंसान की लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है, तो उस इंसान को अगर इन रियलिटी सफर हो लॉस या ना हो, तब भी ही बिकम्स एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन। अब आपको ये पॉइंट इलस्ट्रेशन के बिना नहीं समझ आएगा। इलस्ट्रेशन क्या बोलती है, अब यहाँ पे आप समझो एक्चुअली सफरिंग लॉस और सिर्फ लाइबिलिटी अराइज होने में क्या डिफ्रेंसिएशन है। वैसे अब आप यहाँ पे देखो, जब सी ने ए को स्यू किया कोर्ट ऑफ लॉ में जाके, हमें 100% हो चुका था कि C is somebody who's third person in this contract of indemnity. He is somebody who has got injured. क्योंकि इस इंसान को इंजरी हुई तो हमें ये for sure 100% हो चुका था कि A की लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है। अब कितना डैमेज मिलेगा, कितना उसकी कॉस्ट्स लगेंगी, क्या कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वो बहुत बात की बातें हैं।
अभी इनिशियली हमें ये क्लियर हो चुका था कि लाइबिलिटी ऑफ दिस पर्सन ए, इट हैज़ अ रीजन, वो आ चुकी है, लाइबिलिटी हैज़ बीन अ रीजन। इट मीन्स आप कह लो कि किस तरीके से हम 100% श्योर हो चुके हैं कि ए की लाइबिलिटी इट हैज़ बिकम सर्टन, इट हैज़ बिकम एब्सोल्यूट, इट हैज़ बिकम 100%। कितना खर्चा होगा वो बहुत बात की बात है, कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, जजमेंट आएगी, उसके बाद हमें पता लगेगा कि ए का खुद का कितना खर्चा हुआ बाय वे ऑफ कॉस्ट्स, कितनी उसको कॉम्पेंसेशन देनी होगी बाय वे ऑफ डैमेजेस, या इफ इन केस अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो कितने पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वो बहुत बात की बात है। अगर आपको क्लियर हो चुका है बिगिनिंग में कि इस इंसान का खर्चा हो, दिस पर्सन, बेसिकली दिस पर्सन बीइंग एन ऑनर ही इज लायबल, उसकी लायबिलिटी इट हैज़ अराइज्ड एंड इट हैज़ बिकम सर्टन, इट हैज़ बिकम एब्सोल्यूट, इट हैज़ बिकम 100%, तो एक कोर्ट का कहना है कि जब ये लायबिलिटी अराइज हो जाती है, जब हमें क्लियर हो जाता है, सर्टन हो जाता है कि इस इंसान का डेफिनेटली अब कोई ना कोई खर्चा होने वाला है, इसको कोई ना कोई लॉस या डैमेज होगा जिसकी भरपाई ये इंसान करेगा, तो जब हमें ये क्लियर हो जाएगा उसी मोमेंट से इस इंसान की लायबिलिटी टू पे कॉम्पेंसेशन विल अराइज। बट बहुत सारे कोर्ट्स आर ऑफ एन ओपिनियन कि जब तक इस इंसान को इन रियलिटी लॉस नहीं होता तब तक इस इंसान की लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। इट मीन्स जब तक कोर्ट की जजमेंट नहीं आएगी, जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि ए को कितनी डैमेजेस देनी है, कितनी अमाउंट ऑफ कॉस्ट उसकी खुद की लगेगी, अगर कॉम्प्रोमाइज होगा तो कितने पे होगा, जब तक इन रियलिटी ये सब कुछ नहीं हो जाता, इट मीन्स इन अ वे और द अदर कि जब तक कोर्ट की जजमेंट नहीं आती तब तक ये इंसान इंडेमनिटी नहीं क्लेम कर सकता। तो इट मीन्स गाइज एक तरीके से आप समझो कि जब तक आप नहीं क्लेम कर सकते कॉम्पेंसेशन तब तक आप अपनी पॉकेट से पे करोगे। आपको एक बार के लिए सी को 1000 रुपीज़ अपनी पॉकेट से देने होंगे बाय वे ऑफ डैमेजेस, एक बार के लिए लॉयर की जो फीस है वो भी आपको अपनी ही पॉकेट से देनी होगी, अगर कॉम्प्रोमाइज होगा वो भी आपको अपनी ही पॉकेट से देना है। आफ्टर यू हैव इन रियलिटी सफर्ड सम लॉस और डैमेज, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस इंसान के पास जाओगे और फिर इस इंसान से आप इंडेमनिटी क्लेम करोगे। सो बहुत सारे कोर्ट्स अब क्या कहते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, आई विल बी रिपीटिंग दिस क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मोमेंट, व्हाट इज द टाइम व्हेन इंडेमनिटी बेसिकली ऑफ दिस पर्सन कमेंसेस, कब ये बिगिन होती है, कब ये स्टार्ट होती है, वो क्या टाइम होगा, क्या वो ये टाइम होगा जब इस इंसान की लायबिलिटी हैज़ बिकम एब्सोल्यूट, इट हैज़ बिकम सर्टन, उस टाइम से, या फिर व्हेन दिस पर्सन हैज एक्चुअली सफर्ड सम लॉस, उस सब के बाद वो इंडेमनिटी क्लेम कर सकता है। सो व्हेन इज दिस पर्सन एक्चुअली एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन, क्वेश्चन ये आता है कि कब एंटाइटल्ड होगा वो। सो बहुत सारे कोर्ट्स कहते हैं कि जो हमने ये बात कही ना कि यू मस्ट एक्चुअली सफर लॉस, वो चीज़ गलत है। पॉइंट इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ही क्या होता है कि आपके नुकसान की मैं भरपाई करूंगा। गाइस, अब आप इंश्योरेंस कंपनी के एग्जाम्पल को लेके सोचो, अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, या फिर आपने हॉस्पिटल सर्विसेज अवेल करी, अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको ऐसा कहे कि पहले एक बार के लिए आप अपना खर्चा उठाओ जितना है, उसके बाद हम आपको देंगे, सो डोंट यू थिंक कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ही क्या रह जाएगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी इन द टाइम ऑफ नीड हमारी हेल्प नहीं करेगी, उस टाइम पे हमें ये कहा जाएगा कि एक बार के लिए अपना खर्चा आप खुद उठाओ, बाद में इंश्योरेंस कंपनी विल कम इनटू द पिक्चर और फिर वो आपकी हेल्प करेगी। डू यू थिंक उसका कोई भी मतलब रहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का? इसीलिए बहुत सारे कोर्ट्स ने जो हमारा फर्स्ट व्यू है कि यू मस्ट एक्चुअली सफर लॉस और उसके बाद दिस पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पेंसेशन और टू क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम इंडेमनीफायर, वो चीज़ गलत है। कोर्ट्स कहते हैं कि अगर आपकी वंस लायबिलिटी of this person, indemnity holder, once his liability has become certain, once it has become absolute and 100%, हमें क्लियर हो चुका है कि इसका कोई ना कोई खर्चा होगा, when his liability has become certain, उसी दिन के बाद से, उसी मोमेंट के बाद से this person will enter into the picture, indemnifier आएगा और जितना भी उसके बाद खर्चा होगा वो इस इंसान को करना है, because in a contract of indemnity he has promised to save you against loss. आई होप गाइस आपको ये समझ आए कि इस क्वेश्चन के किस तरीके से डिफरिंग व्यूज हैं. व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन लॉस एक्चुअली सफर्ड एंड लायबिलिटी हैज़ ओनली अ रीजन. और अभी लॉस होना है, कितना होना है वो हमें नहीं पता. तो आई होप आपको समझ आ चुका है. तो जो सेकंड व्यू है उसको ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा कन्विंसिंग माना जाता है. इसका रीज़न भी ये है गाइस कि कोर्ट कहता है कि अगर आप फर्स्ट व्यू को फॉलो करते हो, इट मीन्स दिस पर्सन एक्चुअली हैज़ टू सफ़र लॉस. पहले आपका लॉस सफ़र होगा, आपको नुकसान की भरपाई करनी है, बाद में यू कैन क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम दिस पर्सन. इट इज़ throwing an intolerable burden on this person. अंडरस्टूड है गाइस कि हम इंडेमनिटी, हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्यों एंटर होते हैं. सिंपल एग्जांपल ले लो. आई हैव टोल्ड यू कि द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. दो इट इज नॉट विद इन
द स्कोप ऑफ सेक्शन 124 बिकॉज हमारे पास कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट, बट द बेस्ट एग्जाम्पल इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। हम क्यों इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज या फिर ये जो हमारी व्हीकल्स को हम इंश्योर करवाते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि अगर आप यही अलाउ करोगे कि पहले आपका एक्सीडेंट होगा, फिर सारा खर्चा यही इंडेमनिटी होल्डर उठाएगा, उसके बाद ही कैन क्लेम फॉर एनी लॉस, तो उसका मतलब ही कोई नहीं रह जाता। इट मीन्स इट इज इम्पोजिंग और थ्रोइंग एन इनटॉलरेबल बर्डन ऑन द शोल्डर्स ऑफ दिस पर्सन। इसका तो कोई फायदा, इसको तो लगेगा कि इंडेमनिटी का कोई फायदा ही नहीं हुआ इन द टाइम ऑफ नीड, यानी कि दिस पर्सन माइट नॉट बी एबल टू पे द इंटायर एक्सपेंस फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, यानी कि ही माइट नॉट बी इन अ पोजीशन, उस पोजीशन में आप नहीं भी हो सकते कि आप हर एक खर्चे को खुद उठाओ। तो जब आपको इन द टाइम ऑफ नीड हेल्प नहीं होगी, यू हिमसेल्फ यानी कि दिस पर्सन ही हिमसेल्फ कैन नॉट अवेल हिमसेल्फ ऑफ दिस इन हिज इंडेमनिटी, यानी कि इसने इंडेमनिटी ली थी एंड इन द टाइम ऑफ नीड व्हेन ही इज नॉट इन अ पोजीशन कि वो हर एक एक्सपेंस अपनी पॉकेट से उठाए, उसी टाइम पे दिस पर्सन इज नॉट अलाउड टू अवेल हिज इंडेमनिटी, वो अपने ही इंडेमनिटी को अवेल नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का सिग्निफिकेंस खत्म होता है। और अगर ऐसा होता है तो दिस पर्सन हैज़ टू वेट फॉर द कोर्ट जजमेंट कि कब कोर्ट की जजमेंट आएगी, कब कोर्ट बताएगा कि मुझे कितने डैमेजेस देने हैं, मेरा कितना खर्चा होगा, फिर क्या हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। सो यू हैव टू वेट फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग, आपको बहुत देर वेट करना होगा और उसके बाद कहीं जाके आप अपनी इंडेमनिटी क्लेम कर सकते हो। तो इस चीज़ को ज़्यादा कन्विंसिंग और टेक्निकल नहीं माना गया। कोर्ट ने कहा कि अगर आपकी लाइबिलिटी वंस इट हैज़ बिकम 100%, वंस इट हैज़ बिकम सर्टन, उसी दिन के बाद से यू हैव बिकम एंटाइटल्ड टू रिकवर इंडेमनिटी फ्रॉम दिस पर्सन और एल्स लाइबिलिटी ऑफ दिस पर्सन कमेंसेस। तो आपको ये पॉइंट समझ आया। अब गाइज यही कहते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाया लॉस एक्चुअली सफर्ड वाला, इसीलिए कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की ये रिक्वायरमेंट नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यू हैव टू मेक रीपेमेंट आफ्टर पेमेंट, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले आपको पेमेंट करनी है फिर आप रीपेमेंट लोगे। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी रीपेमेंट आफ्टर पेमेंट, यानी कि पहले आप पेमेंट करोगे फिर यही इंसान आपको रीपे करेगा, ऐसा कोई भी नहीं है क्राइटेरिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी रीपेमेंट आफ्टर पेमेंट इज एक्चुअली मेड, वो चीज़ नहीं होती। इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो ये बोलता है कि जिस इंसान ने इंडेमनिटी ली है, इंडेमनिटी होल्डर है, दैट पर्सन विल नेवर बी कॉल्ड अपॉन टू पे फॉर एनी लॉस। यही होता है कि अगर कभी भी हमारा हॉस्पिटल एक्सपेंस आता है, कभी भी हमारी व्हीकल हैज मेट विद एन एक्सीडेंट, तो वहाँ पे वी आर इंडेमनिटी होल्डर्स, वी पीपल आर नेवर कॉल्ड अपॉन टू मेक एनी पेमेंट। वो सब कुछ कौन देखती है? इंश्योरेंस कंपनी देख लेती है अपने आप एज अ प्रोमिसर, एज एन इंडेमनिफायर। तो वही है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का बेसिक एसेंस यही है कि दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नेवर कॉल्स अपॉन दिस पर्सन इंडेमनिटी होल्डर, इट शैल नेवर कॉल अपॉन दिस पर्सन टू मेक लॉस, you know, to make good for any loss. It is the responsibility, whole sole responsibility promisor की है and it is not necessary that there must be repayment after payment. इसीलिए guys एक मैक्सिम भी बनाया गया है, वो मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिम बोलते हैं कि you must be damnified before you claim to be indemnified. It means damnified का मतलब होता है इंजुरी सस्टेन होना। So you must be damnified before you claim to be indemnified. Now before this person claim to be indemnified, इसके पहले ये इंसान इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनिफायर को कहे कि आप मेरे नुकसान की भरपाई करो, बिफोर दिस पर्सन क्लेम टू बी इंडेमनिफाइड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट दिस पर्सन मस्ट हिमसेल्फ बी डैमनिफाइड। डैमनिफाइड का मतलब है कि आपकी लाइबिलिटी मस्ट हैव अ रीजन। एक बार आपकी लाइबिलिटी आ चुकी है, इट हैज़ बिकम क्वाइट श्योर, इट हैज़ बिकम इंडीड, इट हैज़ बिकम 100% एंड सर्टन कि आपकी अब लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है। बस उसके बाद से आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को बेसिकली स्टार्ट कर सकते हो, इस इंसान की लाइबिलिटी कमेंस हो जाएगी। गाइस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो आपको पता ही है कि जब तक नुकसान नहीं होगा तब तक उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते। इट मीन्स देयर मस्ट बी सम लॉस, आपको जो सस्टेन हुआ अगर वो लॉस होगा आपको, उसके बाद से इस इंसान की लाइबिलिटी शुरू हो जाएगी। जैसे कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में मेन ट्रांजैक्शन तभी शुरू होगी जब कोलेटरल ट्रांजैक्शन कुछ करेगी, यानी कि जब तक ए बी के घर को आग नहीं लगती तब तक ए किस तरीके से उसे 100 रुपीज़ दे, क्योंकि ए ने प्रॉमिस किया था कि आई विल बी गिविंग यू 100 रुपीज़ व्हेन योर हाउस इज बर्न्ड। तो पहले उसके घर को बर्न होना होगा तभी ए की लाइबिलिटी अराइज होगी अंडर अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वही कुछ यहाँ पे होता है गाइज, यहाँ पे भी क्या होगा कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तब तक नहीं शुरू होगा जब तक कोई नुकसान नहीं होता, बिकॉज बी हैज प्रॉमिस्ड टू सेव दिस पर्सन फ्रॉम लॉस। नाउ देयर मस्ट बी सम लॉस विच इज सस्टेन्ड बाय दिस पर्सन। जब इसको कोई लॉस सस्टेन होगा उसके बाद इसकी लाइबिलिटी कमेंस होगी। तो क्वेश्चन यही था कि कब होगी,
क्या वो एक्चुअल लॉस सफ़र करने के बाद होगी या उसी टाइम पे हो जाएगी जब हमें श्योर हो चुका है कि उसकी लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है। तो कोर्ट कहता है उसी टाइम पे इस इंसान की लाइबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी जब हमें ये श्योर हो चुका है, 100% हो चुका है कि इस इंसान की लाइबिलिटी हैज़ अ रीज़न और अब कोई ना कोई लॉस या डैमेज इस इंसान को डेफिनेटली इसको पे करना होगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस पर्सन मेकिंग पेमेंट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट क्लेमिंग इट फ्रॉम दिस पर्सन, कोर्ट कहता है कि डायरेक्टली यही इंसान डीलिंग करेगा एज अ प्रॉमिसर। यही इंश्योरेंस कंपनीज में हम इन केसेस में हम देखते हैं। सो आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि यू मस्ट बी डैम्निफाइड। सिर्फ और सिर्फ एक इंजरी होनी आपको जरूरी है। इंजरी का मतलब है एनी काइंड ऑफ इंजरी, योर लाइबिलिटी मस्ट हैव अ रीजन, इट शुड बी सम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एक बार आपकी लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है, इट हैज बिकम क्वाइट श्योर टू एवरीबडी कि अब आपका खर्चा होगा, अब आपको लॉस या डैमेजेस होंगे। Now you can claim to be indemnified after you have been indemnified. I hope guys आपको ये चीज़ हो चुकी है and this person can ever call upon this person to save him from loss since this person has promised to save him. Provided it must be a contract of indemnity and his liability must be absolute, it must be quite certain. तभी वो फिर indemnity करेगा, तभी वो आपके नुकसान की भरपाई करेगा। अब guys important point ये रहता है कि there must be some notice to this person indemnifier. अब आपकी कार को एक्सीडेंट, आपकी कार हैज मेट विद एन एक्सीडेंट, इंश्योरेंस कंपनी नेवर नोज कि आपकी कार का एक्सीडेंट हो चुका है। सो यू एज एन इंडेमनिटी होल्डर, सिंस इट वाज यू आर एन इंडेमनिटी होल्डर, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर ऑब्लिगेशन, इट इज योर ड्यूटी, यू आर लीगली बाउंड कि आपको क्या करना है, एक नोटिस भेजना है टू दिस पर्सन। इंडेमनिफायर को आपको नोटिस भेजना है ऑफ हिज इंडेमनिटी और एल्स ऑफ हिज कमेंसमेंट ऑफ लाइबिलिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आपको इस इंसान को, इंडेमनिटी होल्डर को, इंडेमनिफायर को एक नोटिस भेजना होगा जिसमें आप ये बताओगे कि योर लाइबिलिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इट हैज़ बिगिन, इट हैज़ स्टार्टेड और इट हैज़ कमेंस्ड। वो शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मेरी कार का एक्सीडेंट हो चुका है, माई व्हीकल हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट और उस व्हीकल की मैंने इंश्योरेंस करवा रखी है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी एज अ प्रॉमिसर वो अपने आप देखेगी कि किस तरीके से नुकसान होगा। यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर द कोर्ट जजमेंट टू कम, यानी कि इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि आप पहले सारा लॉस खुद सफ़र करोगे और फिर आप क्लेम करोगे। आई होप गाइस आपको क्लियर हो चुका है। एंड द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि अगर आप नोटिस देते हो सामने वाले को, इट मस्ट बी एन इमीडिएट नोटिस टू द इंडेमनिफायर। आपकी कार को आज आग लग गई या योर कार हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट एंड आफ्टर 2 months आप बताते हो इंश्योरेंस कंपनी को, दैट इज नॉट टर्म्ड एज अ रीजनेबल नोटिस। इट मस्ट बी गिवन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का मतलब होता है विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड, एज सुन एज इज रीजनेबली पॉसिबल। जितना जल्दी रीजनेबली पॉसिबल हो सकता है विदाउट एनी अनड्यू डिले, उसके विद इन आपको बताना है। इट मीन्स अगर आप नोटिस, ऑब्वियस है आपको नोटिस देना होगा, यू हैव टू बेसिकली इस इंसान की नॉलेज में आना जरूरी है। इट मस्ट बी मेड नोन टू दिस पर्सन वाया अ नोटिस कि माई कार हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, या फिर जो भी आपका सो एंड सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, हम एक बेसिक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं, तो वहाँ पे यू हैव टू मेक इट नोन टू दिस पर्सन, इट मस्ट कम टू हिज नॉलेज विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड, ऐसा टाइम पीरियड एज सुन एज इज रीजनेबली पॉसिबल विदाउट एनी अनड्यू डिले। इमीडिएटली आपको जितना जल्दी हो सकता है एक नोटिस भेजना है टू दिस पर्सन इंडेमनिफायर और इसकी नॉलेज में लेके आना है कि अब आपकी लाइबिलिटी कमेंस हो चुकी है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड फिर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंडेमनिटी क्लेम नहीं कर सकते। सो आपके राइट्स के साथ साथ कुछ आपकी लाइबिलिटीज भी होती है विच यू शुड टेक इन टू अकाउंट। आई होप गाइस आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्लियर हो चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेक्शन 124 एंड 125 दोनों को क्लबिंग में रीड करना। अगर आपने इंडेमनिटी की नहीं मेरी वीडियो देखी प्रीवियस ऑन सेक्शन 124, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो एंड क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स. So guys, I'll be meeting you very soon in my upcoming video. So thank you so much guys. Till then, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.